Good evening, students. We are going to start today lecture number 4, the human eye and colorful world. Let me discuss what point to be covered in today's topic. The first, numericals on defects of vision. The numericals, basically two defects only we are discussing. Actually, three also. Myopia and presbyopia. Sometimes means sometimes they are giving the both the focal lengths, near eyes as well as far. Dispersion of prisms, that is the light splitting of the white light in different colors, as well as recombination of white light. Again the light is going to combine, it is separated, disperse, and again it is going to combine, that is only shifting here. And rainbow is again one condition. Rainbow is a condition of the dispersion of the light. Here if you are finding in the figure, the two types of rainbows are there. This is known as the first one rainbow, those are very dark. This is known as the primary rainbow. This is the primary. If you finding the figure, this one, are you able to see that the first rainbow? This one is known as the primary. Okay. And if the second rainbow, if you are able to see, this is a little bit faint, that is known as the secondary rainbow. If you are finding the sequence also, the sequence also going to reverse. Here in primary rainbow, if you are finding here, the reddish color is up top side. यहाँ पे क्या reddish color क्या आपका? But in secondary rainbow, the reddish color is on bottom side. Reddish color इसमें क्या है? Bottom side में. When it will be finding for primary rainbow, the angle between the horizon and our eye, है ना, ground के और अपना angle जो है is approximately 42 डिग्री. और इसके लिए क्या होता है, एंगल कितना होता है तुम्हारा? 50 to 53 डिग्री. एक्चुअली ये कब दिखेगा आपको? व्हेन द एटमॉस्फेयर इज वेरी क्लियर. जब एटमॉस्फेयर क्या होगा तुम्हारा बहुत क्लियर होगा, जब ये दिखेगा आपको. अगेन व्हाट वी हैव डिस्कस अबाउट दैट, न्यूमेरिकल्स ऑन डिफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन आई. तो न्यूमेरिकल्स ऑफ डिफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन आई, जस्ट वी आर यूजिंग वन फॉर्मूला ओनली. विच वन? द लेंस फॉर्मूला, 1 upon v minus 1 upon u equals to 1 upon f. Okay. Two conditions are there when we are using the far side is myopia. For myopia, what we are using? U is nearly equal to the infinity. U क्या ले रहे हैं अपन वहाँ पे? Infinity. And focal length क्या ले रहे हैं अपन? Whatever the focal length will be the negative, है ना. तो वहाँ पे आ गया myopia के लिए. और हाइपरमेट्रिक के लिए क्या, नियर साइड के लिए क्या ले रहे हैं अपन? ये फार साइड. और ये नियर साइड के लिए ले रहे u इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर एंड एफ यू आर टेकिंग द पॉजिटिव. इतना याद रखना है आपको, है ना. तो और इसमें अभी कभी कभी का एग्जाम्पल में बायोफोकल लेंथ है, यहाँ पे कौन सा लेंस इस्तेमाल कर रहे हैं अपन, और यहाँ पे कॉन्वेक्स, है ना. बायोफोकल आता है तो दोनों का मिक्सचर होता है. द नेक्स्ट वन, here few questions are there. If concave length of the focal length is given 1.5 meter, to restore the proper visions, what happen the power of the lens? तो क्या है, जब आपका फोकल लेंथ जब 1.5 मीटर है, जब तुम्हारी आंखों को बराबर दिख रहा है, कौन सा लेंस ले रहे हैं अपन यहाँ पे? कॉनकेव. तो इसका मतलब कौन सा डिफेक्टिव उससे? मायोपिया है. बराबर है. तो फोकल लेंथ दिया है, तो फोकल लेंथ कितना है तुम्हारा? 1.5 मीटर, है ना. फोकल लेंथ दिया है आपको. तो आपको क्या निकालना था? आपको पावर कौन सा निकालना था? करेक्ट करने के बाद में का पावर निकालना था. फॉर्मूला क्या है अपना? 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इक्वल्स टू 1 अपॉन f. तो यहाँ पे 1.5 दिया है. कौन सा लेंस है तुम्हारा? ये कॉनकेव. तो प्लस हो गया, माइनस होगा 1.5, इट विल बी द माइनस. तो f क्या होगा तुम्हारा? ये माइनस. तो 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी, यानी 0 कर दो सीधा सीधा इसे, और इक्वल्स टू कितना है? 1 अपॉन 1.5, है ना. तो यहाँ पे v कितना आ गया आपका? v भी कितना आ गया तुम्हारा? 1.5 मीटर, है ना. v भी क्या होगा तुम्हारा? ये साइड में आ गया. v कितना आ गया आपका? 1.5 मीटर, है ना. ये आपका आ गया. तो अभी क्या करना है? पावर निकालना है. पावर के लिए करते रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ. पावर इक्वल्स टू पावर क्या है तुम्हारा? 1 अपॉन 1.5 का मतलब कितना है? 1 अपॉन 3/2, है ना. तो इसका मतलब कितना है? पावर इक्वल्स टू 2/3, है ना. 0.666 लिख सकते हैं आप.
है ना, तो डायोप्टर्स पावर कितना है तुम्हारा 2/3, और सिंप्लीफाई करें तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं। समझ में आ गया? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 14 years of old students is not able to see the clear questions written on the blackboard, place at a distance of 5 meters from him। 5 मीटर के बाद में क्या उसको दिख रहा है क्या, क्लियर नहीं दिख रहा है, इसका मतलब इसको भी कौन सा डिफेक्ट है, मायोपिया ही है ना। यहाँ पे भी कौन सा नेम ऑफ द डिफेक्ट्स, अब यहाँ पे नेम ऑफ डिफेक्ट्स क्या है उसका, मायोपिया है ना, यहाँ पे लिख दिया अपने नेम ऑफ डिफेक्ट्स इज अ मायोपिया। नेम ऑफ द टाइप्स ऑफ द लेंस यूज्ड टू करेक्ट द डिफेक्ट्स, कौन सा लेंस ले रहे हैं अपने यहाँ पे, कॉनकेव लेंस ले रहे हैं, वेरी गुड। एंड स्टेट द टू कॉजेस ऑफ दिस डिफेक्ट्स, कौन से कॉजेस है, वन इज आईबॉल एंड अदर इज अ लेंस, है ना। तो यहाँ पे फर्स्ट क्या है तुम्हारा, एक तो आईबॉल, साइज ऑफ आईबॉल और लेंस, है ना, लेंस और तुम्हारा ये साइज ऑफ आईबॉल, इसका दोनों का है ना, दे आर द इलोंगेटेड, है ना, दे आर अनएबल टू फोकस ऑन द रेटिना। कैलकुलेट करना है क्या, नहीं करना है आपको, चलो कैलकुलेट करना है तो कर भी सकते हैं, इसमें कैलकुलेट करने के लिए नहीं पूछा है, करना है तो पूछे तो क्या करना पड़ेगा आपको यहाँ पर। तो यहाँ पे दिया क्या उन्होंने, v कितना दिया आपको -5, u कितना है तुम्हारा इन्फिनिटी, f कितना इतना आएगा 1/5, उतना ही आ जाता है ना। तो यहाँ पे कितना है तुम्हारा मीटर, तो मीटर। और देखो नेक्स्ट वाला, a persons are able to see the objects clearly only when these are lying at the distance of 50 centimeter and 300 centimeter from this eye। उतने रेंज में उसे दिख रहा है ना, 50 सेंटीमीटर और 300 तक दिख रहा है, उसके बाद में दिख रहा है क्या उसे, और 50 के पहले क्या दिख रहा है क्या, नहीं, उसे प्रेस बायोपिया इसका मतलब, है ना, ओल्ड एज पीपल होगा शायद। व्हाट काइंड ऑफ द डिफेक्ट्स ऑफ द पर्सन सफरिंग, क्या है तुम्हारा प्रेस बायोपिया, है ना, ये क्या तुम्हारा प्रेस बायोपिया है। व्हाट काइंड ऑफ द लेंस विल बी द रिक्वायर्ड बायोफोकल लेंथ, है ना, तो यहाँ पे ऊपर क्या करेंगे अपन, कॉनकेव लेंगे और नीचे क्या करेंगे, कॉन्वेक्स लगाएंगे इससे। द रेंज ऑफ विजन्स फ्रॉम 25 सेंटीमीटर इन्फिनिटी, एक्सप्लेन ब्रीफली, करते आएगा बताते आएगा आपको, ये निकालते आएगा, निकालना है कुछ निकालने का तो है, निकाल सकते हैं अपन। तो देखो अभी पहले इसका निकालेंगे, 1/v - 1/u इक्वल्स टू 1/f। तो फार साइड के लिए दिया है, अभी यहाँ पे क्या लेना है आपको, ये क्या लेना है आपको, ये v, है ना, इसके लिए फार के लिए करें, तो यहाँ पे तुम्हारा हो गया तुम्हारा 1/v इक्वल्स +0 इक्वल्स टू 1/f -1/f। तो ये कितना है तुम्हारा 300 यानी 3 लिखता है ना, तो क्या 1/3 इक्वल्स टू 1/f। तो फोकल लेंथ कितना है तुम्हारा -3 डायोप्टर्स, तो -3 डायोप्टर्स का फोकल लेंथ इस्तेमाल करना पड़ेगा ऊपर के साइड का, है ना, जहाँ से आप दूर। अब नीचे का देखना है अपने को, ये किसके लिए, मायोपिया के लिए निकले अपन। अभी क्या है, प्रेस बायोपिया है ना उसको, इसका फोकल लेंथ कितना होगा आपका 3 डायोप्टर्स, -3 डायोप्टर्स ऊपर वाले का। अब नीचे का फोकल लेंथ क्या होगा तुम्हारा प्लस, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा 1/v - 1/u इक्वल्स टू 1/f। तो u क्या है यहाँ पे 25 है, v कितना है तुम्हारा 50 दिया है ना, 50 दिया, तो चलो 50 लिखता हूँ मैं, -1/25 माइनस इक्वल्स टू 1/f, मल्टीप्लाई बाय 2 करो, तो -1/50 प्लस 2/50 इक्वल्स टू 1/f। तो 1/50 बराबर इक्वल्स टू 1/f, ये मीटर में सेंटीमीटर में, तो कितना होगा तुम्हारा 1/0.5 इक्वल्स टू 1/f। तो पावर कितना आ गया आपका, पावर इक्वल्स टू 0.5, देयरफॉर पावर इक्वल्स टू कितना आ गया 0.5, नहीं 2 डायोप्टर है क्या, फोकल लेंथ कितना है 0.5, तो पावर कितना आ गया आपका 0.2 ना, मल्टीप्लाइड बाय 5 10 करो और डिवाइड बाय 10, तो कितना हो गया तुम्हारा 10/2 5 आ रहा है ना, 2 डायोप्टर्स, पावर कितना आ रहा है आपका 2 डायोप्टर्स। तो इसका कितना आ गया तुम्हारा, नीचे का आ गया 2, ऊपर का -3, है ना, 1/4 फोकल लेंथ करना पड़ेगा ना, 0.5 आ रहा है क्या, 0.5 आ रहा है। 1/4 फोकल लेंथ का मतलब भी क्या है तुम्हारा पावर, अरे 1/0.5 मीटर हो गया, 1/0.5 मीटर 1/4 फोकल लेंथ है, इसका मतलब पावर क्या है तुम्हारा 0.5 डायोप्टर्स, 0.5 डायोप्टर्स। बायोफोकल लेंस, कौन सा लेंस, बायोफोकल लेंस है ना, ऊपर क्या क्या कॉनकेव, नीचे क्या है तुम्हारा कॉन्वेक्स आएगा, बायोफोकल अभी पता है, देख सकते हैं। द नेक्स्ट वन, a person having the myopic eyes and use the concave
लेंस ऑफ द फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर्स, व्हाट इज द पावर ऑफ द लेंस, 1/50 कर दो सीधा, है ना। तो पावर कितना होता है तुम्हारा 1/50 सेंटीमीटर है, तो क्या करना पड़ेगा 0.5, है ना। तो पावर आ गया, पावर इक्वल टू 1/, फोकल लेंथ होता है कितना आ गया 1/, नहीं 0.5 कितना हो गया तुम्हारा, मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइड बाय 10, 2 आ रहा है, करें पिछली पेपर 2 चल रहा था क्या, 10/5 है ना। पावर कितना आ रहा है आपका -2 आएगा, है ना। मायोपिया जाए ना यहाँ पे, मायोपिया एंड कॉन्केव लेंस ले रहा, तो पावर कितना आएगा आपका -2, फोकल लेंथ कितना होगा माइनस होगा यहाँ पे, समझ में आ गया। A myopic person having the far points of 80 centimeter. Myopic person there far point 80 centimeters and use the spectacles of power is -1 diopters. How far can he see clearly? तो उसको कितने तक अभी देख सकता है आपको बताना है आपको, है ना। जहाँ तक देख सक रहा है उसका पावर दिया है। मायोपिक पर्सन हैविंग द फार पॉइंट 80 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर उसका फार पॉइंट, उसके आगे उसको दिख रहा है क्या, नहीं। तो फिर क्या कर रहा है उसने, पावर कितना लगाया तुम्हारा 1 का लगाया, फोकल लेंथ इसका 1 का लगाया, है ना। तो उसमें चेंजेस क्या आ रहे हैं उसके दिखने का है। हाउ फार कैन ही सी क्लियरली, तो फिर कितने तक वो देख सकेगा वो बताना है उसको। तो क्या है से वी लेना है आपको, वी कितना लेना है आपको 80 सेंटीमीटर, एफ कितना लेना है आपको -1 डायोप्टर है ना, पावर दिया है, पावर दिया है कितना 1 -1 डायोप्टर, तो फोकल लेंथ कितना आ गया फिर 1/p इज 1/1 मीटर, 100 सेंटीमीटर आ रहा है क्या, 100 मीटर आ रहा है क्या, 1 ही चार 1 नहीं लिखता मीटर कितना है इसको, चलो 1 फोकल लेंथ कितना है 1 मीटर, तो यहाँ पे क्या है 80 सेंटीमीटर 0.8 मीटर। फॉर्मूले में डाल दो, u कितना है आपका इन्फिनिटी 1/v - 1/u इक्वल टू 1/f, तो v कितना है तुम्हारा 1/0.8, v भी माइनस ही होगा, प्लस 1/, छोड़ दो करने की जरूरत नहीं है, u है ना, टू -1/, ये निकालना है ना, सॉरी ये निकालना है, हाँ इन्फिनिट रहता है। अभी वो उसमें कंडीशंस में बताया, वो कंडीशंस में क्या होगा डिफेक्ट कितना चेंजेस आएंगे वो निकालना है। तो क्या है एफ कितना दिया आपको 1/1 ईच, तो 1/u इक्वल्स टू कितना गया तुम्हारा 0.8 मल्टीप्लाई कर दिए, है ना। तो फार पॉइंट तुम्हारा कितना है 80, नजदीक से उसको 80 से दिख रहा है खाली, 1/u इक्वल्स टू 0.8, तो u कितना हो गया तुम्हारा 1/0.8 दिखा है इस पर, पावर देना नहीं चाहिए था इसको। A person cannot see the objects clearly when they are behind 400 सेंटीमीटर, 400 से ज़्यादा दिख रहा है क्या उसे, नहीं है, तो इसका मतलब सेम आगे वही पावर है, मायोपिया का ही है। The name of the defects of suffering from with and also types the power and the correction of the lens, तो वही है पावर क्या है उसका बिहाइंड 400 बाद में दिख रहा नहीं है, इसका मतलब क्या है मायोपिया है ना। तो 1/v - 1/u इक्वल टू 1/f, यहाँ पे क्या है 0, तो 1/400 इक्वल टू 1/f, है ना, माइनस माइनस कैंसिल, तो पावर कितना आ गया आपका 1/4 मीटर यानी 0.25 डायोप्टर्स, पावर आ गया उसका 0.25 डायोप्टर्स। देखिए नेक्स्ट वाला, नियर पॉइंट्स ऑफ सर्टन आईज ऑफ 1 मीटर, अभी नियर पॉइंट दिया है ना, तो हाइपरमेट्रिक दिया है यहाँ पे। The name of the defects also calculate the power of the lens required to correct the defects, अभी 1 मीटर तक उसको दिख रहा नहीं, ऐसे नजदीक नहीं दिख रहा उसको, 1 मीटर करना, 1 मीटर के बाद में उसके दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या है यू कितना दिया आपको, हाँ तो v कितना दिया आपको 1 मीटर, u कितना दिया आपको 25 सेंटीमीटर, तो आपको क्या करना है पावर निकालना है यानी f निकालना है, तो क्या करेंगे अपन p कितना है तुम्हारा 1/f निकालेंगे, बराबर है ना। तो क्या करना पड़ेगा अभी देखिए, तो 1/v - 1/u इक्वल टू कितना 1/f, देखिए तो यहाँ पे v कितना है तुम्हारा, v दिया 1, माइनस ही होता है, ये माइनस होता है ना, 1/1 प्लस 1/25, 25 लिखता मैं 0.5 लिखता मीटर कर देता, इक्वल टू कितना है 1/f, तो मल्टीप्लाइड बाय 4 करता हूँ डिवाइडिंग बाय 4 करता हूँ, तो कितना हो गया -1 प्लस 4 डिवाइड बाय 1 बराबर, तो कितना आ गया फिर 3 इक्वल टू 1/f, तो पावर कितना आ गया आपका 3
डायोप्टर पॉजिटिव आ गया, कॉन्वेक्स रेज लगेगा उसे, बराबर है, तो पावर क्या आएगा उसका 3 डायोप्टर्स, माइनस क्यों गया 3। यहाँ पे क्या कर रहा है मैंने, यहाँ पे मल्टी 0.25 सेंटीमीटर था ना, तो मैंने क्या करा यहाँ पे 0.25 कर दिया, फिर मल्टीप्लाई बाय 4 डिनोमीटर सेम लाने के लिए, इसलिए क्या किया 4/1, समझे। देखिए नेक्स्ट वाला देखिए, रीडिंग ग्लासेस of what powers are needed for the persons whose the near points is given 0.102 centimeter, near point दिया है हाइपोन पे, so that can read the computer screen at 50 centimeter, उसको देखना है 50 से ही देखना है, DDV नहीं लेंगे अपन, यहाँ पे U क्या लेना है आपको 52, है ना। assuming the lens distance of 2 centimeter, उसका डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर, दोनों माइनस करेंगे, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, V कितना है आपका 100 minus 2, सॉरी 102 minus 2 equals to 100, और V कितना दिया आपका 52 minus 2 equals to 50। यहाँ पे हाइपोमीटर लेकिन क्या दिया है इसमें, आपको यहाँ से देखना है, आपको स्क्रीन को, स्क्रीन नजदीक से देख रहा है, को 25 दिख रहा है उन्हें, स्क्रीन दिख रहा है कितने से 50 से ही देख रहा है, इसलिए V क्या है वहाँ पे DDV कितना हो गया उसका 50 हो गया। फॉर्मूला वही करना है आपको अभी, 1 अरे सॉरी यहाँ पे U है, 1/V माइनस 1/U इक्वल टू 1/F, तो ये माइनस है, तो -1/100 माइनस माइनस प्लस 1/50 इक्वल टू 1/F, तो यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 2 करता, डिवाइडिंग बाय 2, तो 2/100 इक्वल टू 1/F, तो 100 सेंटीमीटर है, तो मीटर में कर तो कितना होगा तुम्हारा 2, बराबर है कि नहीं, 2/1 1/100 है ना, 100 सेंटीमीटर, तो क्या होगा तुम्हारा 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 2, करेक्ट है, तो 1 आ गया, 1/100 सेंटीमीटर यानी कितना है 1/1 मीटर, यानी पावर कितना आ गया तुम्हारा 1 डायोप्टर्स, पावर कितना आ गया उसका 1 डायोप्टर्स, समझे। अभी यहाँ पे देखो रिफ्रैक्शंस, प्रिज्म क्या है, द रिफ्रैक्शंस थ्रू अ प्रिज्म, प्रिज्म क्या है तुम्हारा, प्रिज्म इज अ रेक्टेंगुलर शीट, इसमें 3 क्या है रेक्टेंगुलर फ्रेम होते हैं और 2 ट्रायंगल फ्रेम्स, दिस इज नोन एज द एंगल ऑफ प्रिज्म, है ना, ये ट्रायंगल ऐसा है ना, यहाँ पर इस तरह से तो शेप होता है, 3 रेक्टेंगल्स बाउंडेड विद द शेप इज नोन एज प्रिज्म्स, ट्रांसपेरेंट प्रिज्म्स ऑफ द ग्लास जनरली ट्रायंगुलर, ट्रायंगुलर क्या है तुम्हारे अपर, ये सरफेस ट्रायंगुलर है, खाली ये सरफेस ट्रायंगुलर है ये इधर का, और रेक्टेंगल क्या है 3 रेक्टेंगल्स हैं, जैसे नोटबुक आप ओपन करते हो, इधर का रेक्टेंगल, इधर का रेक्टेंगल, और बेस का भी रेक्टेंगल है, इधर से ट्रायंगल और इधर से ट्रायंगल का सरफेस, whose refracting surfaces are inclined at some angle, यहाँ पे इसको बोलते हैं अपन इसको एंगल ऑफ प्रिज्म, ये क्या है तुम्हारा होता है एंगल ऑफ प्रिज्म, है ना, ये तुम्हारा एंगल ऑफ प्रिज्म, और इसे बोलते हैं अपन बेस बोलते हैं नीचे जनरली। तो यहाँ पे देखो रिफ्रैक्शन कैसा हो रहा है प्रिज्म में, दिस इज प्रिज्म इज गिवन, दिस इज अ ग्लास दैट इज डेंसर मीडियम, है ना, और ये क्या है तुम्हारा एयर दैट इज रेयर मीडियम, है ना, तो ये क्या है इंसिडेंट रे, लेट बी कंसीडर प्लॉट द नॉर्मल हियर, नॉर्मल यानी क्या परपेंडिकुलर, ये सरफेस को क्या है तुम्हारी नॉर्मल परपेंडिकुलर है, देन द रे इज बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, अभी ऐसी जाएंगी क्या लाइन, ये लाइन जाने वाली थी ऐसी, पर कैसी जाएगी तुम्हारी लाइन, ये ऐसी जाएगी यहाँ तक, फिर बाद में ये लाइन ऐसी जाने वाली थी आगे, पर ऐसी जाएगी क्या नहीं, यहाँ की नॉर्मल क्या, ये सरफेस में नॉर्मल ये है ना, अभी क्या जाएगी ये नॉर्मल से बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो कहाँ जाएगी तुम्हारी लाइन, ये इस तरह से, समझे, है ना, तो ये होगा तुम्हारा प्रिज्म का जनरली, ये तुम्हारा उसका रे डायग्राम, ये नॉर्मल, इसको नॉर्मल n1 और सपोज है नॉर्मल n2, तो ये क्या है तुम्हारा एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे और नॉर्मल इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, नॉर्मल, नॉर्मल सरफेस परपेंडिकुलर है, ये नॉर्मल इस सरफेस को परपेंडिकुलर है यहाँ से, है ना, इस सरफेस को परपेंडिकुलर क्या है तुम्हारी नॉर्मल है, तो यहाँ पे जाने वाली थी ऐसी गई है, तो यहाँ पे से यहाँ पे फिर बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल हो गई, तो फिर ये सरफेस भी नॉर्मल निकाल दे, एक नॉर्मल n2, ये भी परपेंडिकुलर सरफेस को, सरफेस परपेंडिकुलर दिख रही नहीं क्या वो फिगर में, चलो कोई बात नहीं निकालता हूँ मैं, तो सरफेस को परपेंडिकुलर यहाँ पे, तो यहाँ पे समझो सरफेस को परपेंडिकुलर, तो ये आ रही है, ये नॉर्मल है क्या अभी आपकी,
ये नॉर्मल है, तो ये क्या तुम्हारी नॉर्मल, तो ऐसी जाएगी, तो बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये रेज कौन सी होगी तुम्हारी, रे ऑफ इमर्जेंस। द एंगल नॉर्मल एंड इज नोन एज एंगल ऑफ इमर्जेंस। तो ये क्या है तुम्हारा, एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज नोन एज एंगल ऑफ डेविएशन। इसे क्या बोलेंगे आप, एंगल ऑफ डेविएशन। और ये क्या है तुम्हारा, एंगल ऑफ प्रिज्म। ये इसे क्या बोलते हैं अपन, एंगल ऑफ प्रिज्म। प्रिज्म का एंगल जो है वो एंगल ऑफ प्रिज्म। इस तरह से तुम्हारे प्रिज्म का ये तुम्हारा एंगल क्या है, तुम्हारा एंगल रिफ्रैक्शन R1, और यह भी तुम्हारा सपोज ये R2, सपोज यहाँ पे इसके लिए वो इंसिडेंट होगा, है ना, इमरजेंसी रे। ये इस तरह से तुम्हारे प्रिज्म्स में एंगल होते हैं। अभी जब आई इक्वल टू ई कब होगा, जब तुम्हारे डेविएशन एंगल्स तुम्हारा जो है एंगल डेल्टा इक्वल टू कितना है, सम ऑफ द R1 प्लस R2। व्हेन R1 एंड R2 आर इक्वल, जब भी क्या होगा तुम्हारा I1 और E भी तुम्हारा क्या होगा, सेम होगा। यहाँ पे डिस्पर्शन ऑफ प्रिज्म, तो सेम। अभी व्हाइट लाइट आ रही है आपकी, जिसकी स्पीड ज़्यादा है वो क्या करेगा, कम बेंड करेगा, है ना। वॉलीबॉल भी खेलते होंगे तो पता है आपको, बॉल को नेट पे मार, जिसकी बॉल की स्पीड ज़्यादा है तो कभी कभी नेट से टकरा के बाहर उधर जाता है। वो स्लो है तो फिर उसकी वो क्या है, वहीं पे गिर जाता है। वैसे सेम, जिसकी स्पीड ज़्यादा है वो क्या होगा तुम्हारा, सबसे ऊपर आएगा। और वायलेट की स्पीड क्या है, सबसे कम, तो वायलेट क्या आ गया तुम्हारा नीचे। ये क्या तुम्हारा पर्टिकुलर पैटर्न में क्या होगा तुम्हारा, लाइट तुम्हारा डिस्पर्स हुआ। इसे बोलते डिस्पर्शन ऑफ द प्रिज्म। फर्स्ट रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वायलेट। तो यही तरीके से आप याद करो, है ना। आपके बुक्स में विबग्योर बोल के सीक्वेंस दिया है उल्टा, वैसा ही करते बच्चे, ये वैसे ही याद करते और एग्जाम में वैसा ही लिख देते, पूरे गलत हो जाते हैं, है ना। तो सीक्वेंस ऊपर से याद करो। फर्स्ट वाला रेड, सेकंड वाला ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वायलेट। हाँ, रेड की वेवलेंथ भी ज़्यादा है, स्पीड भी ज़्यादा है। ज़्यादा स्पीड वाला क्या है तुम्हारा, कम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। जो स्लो है उसको स्लो जा रहा है, डिस्टेंस ज़्यादा ट्रैवल कर रहा है। अभी डिस्पर्शन सेम, अभी इसमें भी क्या है, डिस्पर्शन वही बताना है आपको, डिस्पर्शन कैसा हो रहा है। डिस्पर्शन कैसा है तुम्हारा, व्हाइट लाइट आ रहा है, व्हाइट लाइट से कितने तुम्हारे 7 कलर आ रहे हैं। तो सबसे पहले कलर कौन सा है तुम्हारा, 1 2 3 4 5 6 और 7। अभी सभी जो लाइन जो आ रहे टूवर्ड द बेंडिंग टूवर्ड द बेस, बेस की तरफ भी झुक रहे, है ना। ये लाइन लगाया अपनी, समझो आपको फिगर भी निकालना है सपोज, तो याद कभी भी याद रखो आप, फिगर कैसे निकालोगे आप। तो ये यहाँ पे जो रेज आया, तो ये रेज से क्या है तुम्हारा, नॉर्मल यहाँ पे आएगा सपोज। तो ये जो भी रेज आएगा सातों के सातों, तो इसके नॉर्मल से नीचे आएंगे। ये 1 2 3 4 5 6 और 7, ऐसे ऊपर नहीं आएंगे। बच्चे बहुत से बच्चे कैसे निकालते, फिगर निकालते समय ऐसा निकालते, राइट रेड निकालते, फिर 1 2 3 4 ऐसे निकालते बहुत से, है ना। तो ऊपर रेज नहीं आएंगे, याद रखो, है ना। तो क्या है, हमेशा रेज कैसे आएंगे तुम्हारे, नीचे से आएंगे, है ना, या बेस के नीचे आएंगे। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहला कलर कौन सा है, ये 1 2 3 4 5 6 7। एक्चुअली आते बहुत काफी कलर्स आते हैं, प्रिज्म स्प्लिटिंग मेनी कलर्स, बट वी आर एबल टू सी ओनली 7 कलर्स। अपनी कैपेबिलिटी क्या है, अपन सिर्फ 7 कलर्स देख सकते हैं। इसलिए अपन क्या बोलते हैं, अपनी विजिबल स्पेक्ट्रम कितना है अपना, 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर्स, उतना ही अपने है। उसके अलावा भी लाइट में कलर्स है ना। उससे क्या बोलते हैं अपन, जहाँ पे रेड के हैं, रेड टू वायलेट, है ना, ये कलर भी है। उसे मतलब इंफ्रारेड, जो आपने को दिखते नहीं लेकिन कलर होते हैं। वायलेट की ज्यादा भी कलर है, उसे बोलते हैं अल्ट्रा वायलेट, वो जो होते हैं लेकिन दिखते नहीं है अपने को, है ना। आप देखते होंगे लाइट में कुछ ऐड देखते होंगे तुम, जो उसकी अल्ट्रा वायलेट रेज आते हैं ना, धूप काले दिन में अपनी सब एनर्जी खत्म कर देते हैं। इसका मतलब व्हाइट लाइट में वो भी कलर है, पर आपने को दिख रहा है क्या, वो नहीं, है ना। इसलिए ऐसा मत समझो कि 7 ही कलर स्प्लिट होते हैं। दे आर स्प्लिटिंग मेनी कलर्स, बट वी आर एबल टू सी ओनली 7 कलर्स। द कॉज ऑफ डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट, क्यों डिस्पर्स हो रहा है, बिकॉज लाइट कंसिक्वेंस इन 7 कलर्स फॉर अस। न्यूटन स्पेक्ट्रम में क्या है, न्यूटन सीरीज में बताया, आपने बताया कि लाइट्स क्या है तुम्हारा, लाइट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द 7 कलर्स, ऐसा बताया आपके बुक्स में, है ना। एक्चुअली व्हाइट कलर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द ऑल द कलर्स। जैसे कि तुम्हारी लाइट, तुम्हारा व्हाइट लाइट इज रिफ्लेक्टिंग ऑल द कलर्स। ब्लैक कलर क्या करता है, सभी कलर को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। उसी तरह से व्हाइट कलर क्या करता है तुम्हारा, वहीं से सभी कलर क्या होते हैं, रिफ्लेक्ट होते हैं, है ना। द मेन सोर्स ऑफ द रिफ्लेक्टिंग द लाइट। इसलिए कि व्हाइट कलर में क्या तुम्हारे, इट्स कंसिक्वेंस द ऑल द कलर्स बना, ऑल कलर्स है तो 7 कलर, है ना। तो अब न्यूटन रिंग में वही दिया है तुम्हारा, यहाँ पे आप देखते होंगे कलर, है ना। तो इस तरह से जब तुम घुमाओगे, आप इसे स्प्लिट करोगे,
तो यहाँ पे भी क्या दिखेगा आपको, पूरा स्प्लिट करने के बाद में आपको पूरा व्हाइट स्पेक्ट्रम दिखेगा। यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेशन क्या करें, आप सेम टाइप ऑफ प्रिज्म्स लिए अपन यहाँ पे, सिमिलर एज अ ग्लास लैब। ग्लास लैब में वही हो रहा है। ग्लास लैब क्या है तुम्हारा, ग्लास लैब में क्या है, सिमिलर एक्ट्स एज अ टू प्रिज्म। ग्लास लैब में क्या हो गया, दो प्रिज्म कैसा है ग्लास लैब, है ना। तो उसमें भी क्या हो रहा है, यहाँ पे जो लाइट आ रहा है आपका, यहाँ से इंसिडेंट रे जो आ रहे हैं सपोज, यहाँ पे क्या है तुम्हारे इसमें जा रहे हैं, है ना। इसमें से फिर क्या हो, तुम्हारे स्प्लिट हो गए डिफरेंट कलर्स, फिर रिकम्बाइन हो गए और फिर सिर्फ लैटरल शिफ्टिंग हो गया। यहाँ पे भी वही हो रहा है, जस्ट इट इज अ द रिकॉम्बिनेशंस। यहाँ पे कलर आए, स्प्लिट हो गए डिफरेंट कलर्स, देन अगेन द सेम वी आर यूजिंग इन्वर्टेड प्रिज्म्स। तो वही सेवन कलर क्या तुम्हारे कंबाइन होकर क्या तुम्हारा व्हाइट लाइट, इसमें सिर्फ स्प्लिट हो गया। तो इसका क्या पाथ ऐसा था और इसका क्या है स्प्लिट, लिखा है तुम्हारा शिफ्टिंग ऑफ व्हाइट लाइट, है ना। इसे बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन। आने वाला पहले था भी व्हाइट ही और आ रहा भी तुम्हारा मिल रहा है भी कौन सा है तुम्हारा, वो व्हाइट ही मिल रहा है। इसे बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन ऑफ द कलर। This is total internal reflections. Total internal reflections always from denser to the rare medium. हमेशा क्या होगा तुम्हारा डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में होगा। तो यहाँ पे देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये when the angle of incidence greater than the critical angle then only we are finding the total internal refractions. यहाँ पे क्या है, ये एंगल तुम्हारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना है तुम्हारा, r equals to 90. दैट स्टेज वी आर सीइंग दिस एंगल इज नोन एज क्रिटिकल एंगल। वो एंगल क्या होगा तुम्हारा क्रिटिकल। जब ये एंगल से ज्यादा होगा तो इसका मतलब आर क्या होगा तुम्हारा, आर आल्सो ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो 90 डिग्री यानी झुक गया यहाँ पर, है ना। वो रेस की क्या होगा तुम्हारा 90 बोल तो सरफेस पे, 90 से ज्यादा बोल तो तुम्हारी वही मीडियम में घुस गया ना, है ना। तो वो कंडीशन क्या तुम्हारी इंटरनल रिफ्लेक्शन अंदर से ये, तो फिर उसमें सब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन तो तुम्हारे ओबे हो गए। इज नोन एज व्हेन द इंसिडेंट एंगल इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल इज नोन एज द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। The total internal reflection is a phenomena of refractions of the lights into the denser mediums from an interference the rear and the denser mediums when the angle of incidence is greater than the critical angle. जब critical angle से angle जब बड़ा होगा जब भी तुम्हारा ये total internal reflection आ रहा है। critical angle कौन सा है, when the angle of reflection is 90 degree. जब angle of reflection क्या है आपका 90, it is the angle of incidence of the denser mediums corresponding which the angle of refractions rear medium is 90 degree. जब angle of reflection क्या है आपका 90 है। The essentials conditions for total internal reflections क्या है, conditions क्या है, same again, it will be again light passing from denser to the rear one. The ray of light should travels from denser to the rear one and the angle of incidence in the denser medium should be greater than the critical angle, है ना। तो क्या है ये तुम्हारा critical angle से जब बड़ा होगा जब भी क्या होगा तुम्हारा इसमें total internal reflection होगा। Here given the same picture of total internal reflections. यहाँ पे भी क्या है देखो, पर्सन यहाँ पे खड़ा है, द एप्लीकेशन ऑफ इंटरनल रिफ्लेक्शंस मेनी एप्लीकेशंस आर गिवन। यहाँ पे क्या है देखो, आदमी खड़ा है यहाँ पर, ये कहाँ पर है तुम्हारा, ये डेंसर मीडियम में है और ये क्या है तुम्हारा रियर मीडियम है ना। यहाँ पे देख रहा है रेज, हॉट रेज क्या है तुम्हारा, इसका क्या है हॉट रेज का क्या है तुम्हारा, जब टेम्परेचर क्या हो तुम्हारा हॉट रेज क्या है तुम्हारे ऊपर जाएंगे, यहाँ पे डेंसिटी कम होगी, यहाँ पे डेंसिटी क्या होगी बढ़ती गई। यहाँ पे क्या और तुम्हारे यहाँ पिछले दिख रहा है रेज टोटल इंटरनल क्या हो रहा है तुम्हारे बेंडिंग फ्रॉम डेंसर टू द सेम इसमें आ गए, सेम मीडियम में आ गए। जो रिफ्लेक्शन का तुम्हारा ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल हो गया यहाँ पर, तो इसलिए क्या तुम्हारे को यहाँ पे इसके इमेज दिख रहे हैं यहाँ पे इसके मिरेज, है ना। दिस वन सेम, यहाँ पे क्या हो रहा है तुम्हारा सेम, यहाँ पे भी ये डेंसर मीडियम में है और ये क्या है तुम्हारा रेयर मीडियम में है। यहाँ पे भी तुम्हारा रिफ्लेक्शन दिख रहा है, इट इज ऑलवेज फ्रॉम डेंसर टू द रेयर वन। The rainbow formations. Rainbow formation actually basically two types of rainbows are there, primary and secondary. A rainbow is a natural spectrum appearing in the skies after the rain shower. And always it is opposite direction of the sun. Sun के opposite direction में दिखेगा. It is causes by the dispersions of sunlight by tiny water drops present in the atmosphere. The rainbow is always forms directions opposite to that of the sun. ये important है। क्या है तुम्हारा हमेशा रेनबो क्या होगा तुम्हारा सन के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। The rainbow can also be seen the sunny days and looking at the skies through the waterfalls or through the water fountains at the sun behind you, है ना। जब जहाँ आपके सन आपके पीछे होगा तो रेनबो क्या दिखेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन दिखेगा। तो यहाँ पर रेनबो कैसा आ रहा है बताए देखो, आप है, सन है, ये वाटर ड्रॉपलेट, सपोज ये वाटर ड्रॉपलेट से इमेजिन करो कि वाटर ड्रॉपलेट से आपके
ये वाटर ड्रॉपलेट समझो आपका, है ना। तो इसमें क्या होता है, दो रेनबो आते बोला मैं, प्राइमरी और कौन सा आ रहा है, सेकेंडरी। तो अपन सबसे पहले प्राइमरी देखेंगे पहले। तो क्या है, अपने आंखों का जो एंगल जो है ना, तो ये हॉरिजन है, सपोज पानी का बहुत बड़ा ड्रॉप हो गया है, चलो कोई बात नहीं। जो अपने आंखों के क्या है, दो एंगल होते हैं, तो यहाँ से एक और दूसरा एक। तो यहाँ पे एंगल सपोज तुम्हारा ये 40 है और दूसरा एंगल क्या है आपका 42 है। तो यहाँ पे सनलाइट यहाँ पे ऐसे आएगी, तो सनलाइट यहाँ पे आ रही, इसमें जा रही है डेंसर मीडियम में, डेंसर से यहाँ पे टकरा रही है ना, यहाँ से टकरा के क्या हो तुम्हारी यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, पानी की रिफ्लेक्शन से क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो रहा है, तो यहाँ पे रेड आ रही है। तो इस तरह से तुम्हारा क्या हो, तुम्हारा राइट तुम्हारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होके यहाँ पे आ रहा है। तो इस तरह से तुम्हारे क्या है, यहाँ पे तो देख रहे अपने को तो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स दिख रहे हैं। तो यहाँ पे कलर दिखेगा, ऊपर दिखेगा तुम्हारा रेड और नीचे दिखेगा तुम्हारा वॉयलेट। तो एंगल कितना है दोनों के अपने हॉरिजन के हिसाब से। अभी सबका हॉरिजन अलग हो सकता है ना। तो अभी आपकी हाइट अलग, मेरी हाइट अलग, सभी की हाइट अलग अलग है, लेकिन एट द डिस्टेंस अपन क्या करते हैं वहाँ पे सेम अपने आंखों का एंगल और हॉरिजन का एंगल कितना होना चाहिए, 40 से लेके 42 डिग्री तक हो जाएगा, जब क्या तुम्हारा रेनबो तुम्हारे को दिखेगा आपको। एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन अगेन मेनी फैक्टर्स आर देयर, द सॉल्टी वाटर द कंडीशंस आर द डिफर। यहाँ पे जाए देखो रेनबो है ना, ये क्या तुम्हारा सिंगल इंटरनल रिफ्लेक्शन, सिंगल इंटरनल रिफ्लेक्शन से क्या आएगा तुम्हारा प्राइमरी रेनबो आएगा, और डबल इंटरनल रिफ्लेक्शन जब होता है जब क्या आएगा तुम्हारा सेकेंडरी। इसकी भी फिगर बताता हूँ मैं आपको। द वाटर ड्रॉपलेट्स आर एक्ट्स लाइक अ स्मॉल प्रिज्म्स, यहाँ पे क्या प्रिज्म कैसा काम करते हैं वाटर ड्रॉपलेट्स, है ना। तो यहाँ पे लाइट आ गया आपका, तो ऑब्जर्वर यहाँ पर था, तो यहाँ पे क्या तुम्हारा ये यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, और ये भी वाइट क्या होगा तुम्हारा यहाँ पर। तो यहाँ पे क्या होगा तुम्हारा इसके पास, यहाँ से फिर से, तो यहाँ से आगे फिर यहाँ पे फिर क्या बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, एक यहाँ पे लाइट पैरेलल नहीं आएगी, यहाँ पे कैसे आएंगे इस तरह से, ऑब्जर्वर के आंखों पे दिखेगा यहाँ पर, है ना। इस तरह से तुम्हारा ये प्राइमरी रेनबो। द रिफ्लेक्ट्स इंटरनली एंड फाइनली reflects again when the comes to the out the rainbows, and due to the dispersion of the lights the internal reflections, यहाँ पे क्या हो रहा है इंटरनल रिफ्लेक्शंस हो रहा है ना, सिंगल इंटरनल रिफ्लेक्शंस हो रहा है यहाँ पे। डिफरेंट कलर्स ऑफ द रीचेस द ऑब्जर्वर्स। तो अभी सेकंड रेनबो में कैसा होगा, सेकंड रेनबो में देखो लाइट ऐसा है, तो लाइट क्या तुम्हारा इधर जाता है, इधर टकराता, फिर इधर जाता, फिर इधर आके फिर निकलता, ये क्या है तुम्हारा फिगर सेकंड रेनबो की। जब एंगल कितना हो रहा है आपकी आंखों के साथ 52 53, इसका स्पेक्ट्रम क्या है, रेड नीचे है और वायलेट क्या है इसका ऊपर है ना। ये होगा तुम्हारा सेकंड रेनबो। आपको नहीं है लेकिन फिर मालूम रहना जरूरी है दिया है इसमें, सेकेंडरी भी दिया है आपको। देखो प्राइमरी रेनबो, प्राइमरी रेनबो क्या है यहाँ पर, यहाँ पे देख रहे हैं आप हॉरिजन से, तो ये एंगल कितना है तुम्हारा 40 से लेके 42। यहाँ पे सेकेंडरी रेनबो का एंगल कितना है तुम्हारा 50 से लेके 53, है ना। यहाँ पे 2 टाइम्स दो बार रिफ्लेक्शन हुआ इंटरनल रिफ्लेक्शन। यहाँ पे क्या रिफ्लेक्शन एक ही बार हुआ, यहाँ पे क्या एक ही बार, यहाँ पे टकरा के यहाँ पे आके फिर ऑब्जर्वर के पास, यहाँ पे टकरा के फिर ऑब्जर्वर के पास, यहाँ पे क्या है 2 बार गया, यहाँ पे लाइट आया सन का लाइट, यहाँ से टकरा के यहाँ से टकरा के फिर यहाँ से फिर ऑब्जर्वर के पास, है ना। 2 बार इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ है यहाँ पर, अंदर के अंदर ही कितना हुआ, कितने बार 2 बार। नेक्स्ट वाला देखो अभी, white light is incidence on the interference glass and air as shown in the figure. If the green light is just totally internally reflected through the emerging rays of the air in conditions. तो यहाँ पे green light दिया है, यहाँ पे B है क्या, तो क्या पूछ रहा है उसने, what is the incidence on the internal reflections, incidence on the internal glasses and the air as shown in the figures. If the green light is just totally internally reflected, green क्या है तुम्हारा, वो तो स्पीड है, उसने बाहर नहीं गया, एग्जैक्टली तुम्हारा क्रिटिकल एंगल आर दिया है उस पर, है ना। देन द इमर्जिंग रेज, इमर्जिंग रेज यानी क्या तुम्हारे इधर बाहर निकलने वाले, ये इधर के रेज कौन से आएंगे तुम्हारे, वाले लगेगा क्या, देखो सोचो, हाँ देखो, तो क्या है जिसकी स्पीड ज़्यादा है वो क्या है निकल जाएंगे आगे ऊपर, तो इसकी स्पीड ज़्यादा होने वाले कौन से है तुम्हारे, है ना। तो ये अंदर आएंगे ना, ये क्या आ जाएंगे तुम्हारे जो 3 चीज तुम्हारा वायलेट, और ये वायलेट इंडिगो और ब्लू ये नीचे आएंगे, और ऊपर जाने वाले कौन से रहेंगे तुम्हारे येलो ऑरेंज और रेड, तुम्हारे इमर्ज हो जाएंगे, निकल जाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, रेनबो हैज सर्कुलर शेप्स बिकॉज, इसके 2 रीजन है, क्या है भी, द सन इज अ स्फेरिकल, सन इज अ
स्पेरिकल, सन भी स्पेरिकल है, और एक दूसरा रीजन क्या है, आपने आग भी क्या है, कॉन्वेक्स है। रेनड्रॉप स्पेरिकल तो उसका कोई लेना देना नहीं, रेनड्रॉप स्पेरिकल रहने तो कैसे, तो अंदर का है तुम्हारा इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है उसमें। एक्चुअली क्या है तुम्हारा शेप जो सन का है, सन आपने क्या बिहाइंड अपने पीछे है, और एक ही सोर्स है ना, एक ही सोर्स से जब लाइट निकलेगी तुम्हारे यहाँ से लाइट निकल रहे पूरे, बराबर है। जब एक ही सोर्स से लाइट निकले तो एंगल क्या करे, वो लाइट क्या करे तुम्हारे, एंगल बना रहे। और रेनबो कब दिख रहे हैं, जब आपके आंखों का एंगल कितना हो रहा है तुम्हारा, 40 से लेके 42 तक। तो आप देखिए एंगल, तो आप कैसा बनेगा, आपके आंखों का एंगल 42 42 डिग्री सर्कल बनेगा ना, तो वही दिख रहा है सेम, है ना। यहाँ से आपका, यहाँ पे आप ऑब्जर्वर हो तो आप देख रहे हो तो क्या है आपका, यहाँ पर एंगल बन गया आपका। नेक्स्ट वाला, और डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट्स इनटू द कंसिक्वेंट कलर्स ऑकर्स ड्यूरिंग द रिफ्लेक्शन में नहीं हो रहा, इंटरनल नहीं, इसी में नहीं, इसमें होता क्या है कभी, रिफ्रैक्शन में होता है। रिफ्लेक्शन में कभी होगा क्या, नहीं ना, रिफ्लेक्शन में बाउंसिंग बैक हो रहा है ना। यहाँ पे रिफ्लेक्शन बाउंड्री एट ए ट्रांसपेरेंट मीडियम, ट्रांसपेरेंट मीडियम क्या तुम्हारा प्रिज्म ही है, तो वो ड्रॉप लो, रेन ड्रॉप लो, ट्रांसपेरेंट है ना, तो रिफ्रैक्शन में हो रहा है। नेक्स्ट वाला देखिए फिगर, a prism ABC and BC as the base, okay, is placed at a different orientations. A narrow beams of the white lights is incidents on the prisms as shown in the figure. 11 point, okay, जरूरत नहीं. In which of the figure following case after dispersions third colors of the top corresponding to the colors of the sky. Color of the sky का मतलब क्या है तुम्हारा, ब्लू दिखाना है ना, टॉप से बोल तो पहले क्या होगा तुम्हारा, VIB, पहले क्या चाहिए, विग्योर चाहिए, वॉलेट चाहिए, और नीचे सबसे नीचे क्या चाहिए आपको, नीचे चाहिए रेड चाहिए आपको, है ना। बोल तो नीचे सबसे रेड होना चाहिए, और ऐसा तुम्हारा थर्ड वाला तुम्हारा ये आना चाहिए। तो ह्यूमन आईज एंड द कलरफुल वर्ड, तो यहाँ पे जाता है तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ऊपर रेड आ रहा है ना। तो पहली फिगर नहीं है अपनी, ये है क्या, ये इसमें नहीं है, अरे तो इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे रेड आ रहा है ऊपर, और यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे 3 आ रहा है ब्लू, यहाँ पे नीचे से आ रहा है क्या, ये नहीं आ रहा, तो ये अपने काम का नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है तुम्हारा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे वायलेट जा रहा है, और यहाँ पे 3 नंबर पे ब्लू आ रहा है, यहाँ पे नीचे रेड जा रहा है ना। फिगर ऐसे निकालने का नहीं, लेकिन फिर बताया मैंने आपको, है फिर मेरी फिगर गलत है एक्चुअली। यहाँ पे क्या है तुम्हारा, ये ऐसे इतना नीचे नहीं होता है लाइट, यहाँ पे तुम्हारा 3 नंबर पे आ रहा है ना, यहाँ पे रेड कलर। तो यहाँ पे कुछ हो रहा है क्या, यहाँ पे ऐसा लाइट गया है, बाद इधर जाएगा, नीचे आ रहा ही नहीं, लाइट ही नहीं आ रहा है नीचे। यहाँ पे भी गए बाद कैसा होगा तुम्हारा, ये बेस है ना, तो यहाँ पे भी नहीं होगा। तो आपका आंसर कौन सा होगा तुम्हारा, बी, यानी सेकंड वन। Trace on answer sheets of the path of the monochromatic rays of AO incidents on the glass prisms and marks of the angle of deviation. एंगल ऑफ डिविएशन निकालना है। एंगल ऑफ डिविएशन क्या है, एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंस रे। तो ये क्या है तुम्हारी, यहाँ पे इंसिडेंट रेज को एक्सटेंड कर दो यहाँ से, तो यहाँ पे नॉर्मल से तुम्हारी यहाँ पे रह गई, यहाँ से इमर्जेंट हो रही, तो ये क्या है तुम्हारी इमर्जेंट रे, और ये क्या है तुम्हारा एंगल ऑफ डेविएशन। इफ द if AO is where the ray of white light, okay, incident ray white light there, describe what will be you observe on the screen of BC. तो BC में क्या देखोगे आप, स्पेक्ट्रम देखोगे, तो यहाँ पे क्या देखोगे, आपके कलर देखोगे आप, है ना, रेड टू वॉयलेट। डिस्क्राइब प्लेस विद द नेम, राइट द नेम ऑफ दिस फेनोमेना, इसे क्या बोलेगा आप, डिस्पर्शन, है ना, इसे क्या बोलेगा आप, स्टेट द कॉजेस ऑफ दिस फेनोमेना। क्या कॉजेस क्या है इसके, कि हो रहा है तुम्हारा रिफ्रैक्शन, है ना। what does prove that above the consequence of the white light is a combination of the many colors, is a combination of many colors, हाँ 7 बोलो आप चलेगा, है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर बोलो, या तो मेनी कलर, 7 कलर बोल तो भी आपको करेक्ट, गलत कोई नहीं बोलेगा, पर मेनी कलर्स बोले तो सबसे सुटेबल आंसर है। which color of light is undergoes the maximum deviation of the passing, violet, सबसे नीचे का violet है, करेक्ट है ना। यहाँ पे क्या है तुम्हारा, सबसे नीचे क्या है, violet, तो डेविएशन किसका, इसका ज्यादा होगा, तो आंसर क्या है इसका, violet। The next one, the phenomenon of dispersion occurs because, सेम क्वेश्चन था क्या ये,
different colors of the light travels at a different speed of the prism. करेक्ट है सी. खाली लैंग्वेज चेंज करेगा उसमें, क्वेश्चन वैसा ही था. और समरी में आज का देखिए रिफ्रैक्शन थ्रू द प्रिज्म्स एंड फॉर्मेशन ऑफ द रेनबो. है ना, प्रिज्म कैसे तुम्हारा डिस्पर्शन से आ गया है ना. यहाँ पे अपन स्प्लिट करे कलर रेड टू वायलेट, और रेनबो कैसा बन गया तुम्हारा. इट इज बाय बिकॉज ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. प्राइमरी रिफ्लेक्शन से एक बन गया तुम्हारा रेनबो प्राइमरी, और सेकेंडरी कैसा बना आपका, है ना, ये तुम्हारा बन गया सेकेंडरी रेनबो का, है ना. ये प्राइमरी का और ये सेकेंडरी का. और क्या है आज होमवर्क से क्वेश्चन से देखेंगे फटाफट, है ना टाइम. अंडर व्हाट कंडीशंस विद द ग्लास लेंस प्लेस इन द ट्रांसपेरेंट लिक्विड बिकम्स इनविजिबल. तो कब होगा इनविजिबल, जब दोनों का रिफ्लेक्ट इंडेक्स क्या होगा तुम्हारा सेम होगा, है ना. बोथ हैविंग द सेम. अंडर व्हाट कंडीशन द ग्लास लेंस प्लेस इन द ट्रांसपेरेंट लिक्विड्स हैविंग द सेम रिफ्लेक्ट इंडेक्स, हैविंग रिफ्लेक्ट इंडेक्स एज ग्लास. ग्लास का जितना रिफ्लेक्ट इंडेक्स है उतना रिफ्लेक्ट इंडेक्स है, तो क्या है तुम्हारा दोनों भी इनविजिबल होगा. डिस्क्राइब द इलस्ट्रेशंस विद द डायग्राम्स एंड हाउ शुड द arrange the two converging lenses so that the parallel beams to be. अभी टू क्या करे तुम्हारे दोनों converging है. Okay, describe the illustrate with the diagrams how should arrange two converging lenses so that a parallel beams of light in one lens, parallel beam of lines in a one lens. कैसा आ गया, हाँ दोनों भी कन्वर्जिंग ले रहे हो ना. Describe with the diagrams how should arrange two converging lenses so that parallel beams of light entering in parallel beam. Parallel beam second beam से जा रही है, लेंस है, दो प्रिज्म थोड़ी हो. An object is placed at a distance of 3 centimeters from the concave. Actually, हाँ तो ऐसा होता था सपोज ये, तो आप यहाँ पे आती थी पैरेलल लाइंस, दो पैरेलल लाइंस बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या है आपको, यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस कौन सा बोल रहे हैं आप, एज ए पैरेलल बीम आफ्टर पासिंग थ्रू द. ओके, सेकंड लेंस में से आना है, फर्स्ट लेंस से कोई लेना देना नहीं है, सेकंड लेंस में से आना है, तो सेकंड लेंस एक पीछे एक रखो. यहां से लाइन क्या होगी आपकी, सीधी निकलेगी, है ना. लेंस में से गई तो ऑप्टिकल सेंटर से विदाउट एनी डेविएशन, सेंटर में से विदाउट डेविएशन जाएगी ना. Then object is placed at a distance of 3 centimeters from the concave lens of the focal length is 12 centimeters. Find position and the nature of the image. तो निकाल सकते हैं आप ये. होमवर्क कर लेते हैं क्या, कौन, हाँ चलो ये कर लेते हैं होमवर्क. ओके, देन जस्ट यू सॉ दैट होमवर्क. Approximately 54 slides are there. Which one? 54. Okay, if they repeat it, then again, if any doubt, you can ask anytime, no issue. Tomorrow is our that revision class, na? We'll discuss in the revision class. Okay, thank you.